Hello friends, welcome to my channel. I'm C. Amit Popot, welcoming you all to today's profit and loss analysis. Actually, today I had a loss of 21,000 odd. सुन के आपको लग रहा होगा कि 21,000 is huge loss. How can you afford it? But my dear, my capital is 15 lakhs, and if you just calculate it, it is approximately 1.25% of my total capital, which is barely manageable. Plus, yesterday I had 20,000 plus profit, so today I can afford that much loss. Of course, I always keep to plan my losses below 1%. मतलब अगर मेरा 15 lakhs का कैपिटल है तो हमेशा मेरी ये ट्राई रहती है कि मेरा लॉस 15,000 से कम रहे. But today I took the third trade, which I think that there was a lesser risk. Plus, I had the yesterday's profit, so I took the trade. Nevertheless, I broke one of my rule that I will try to keep my losses below 1%. आज मैंने उस rule को तोड़ा है. That is what I gonna accept. And I'll tell you how I took the trade, why I suffered losses, and where my stop losses got hit. So chale, let's begin. So as you can see on the screen, it's my today's position that 21,446 is the net loss. At one point of time, I was in 4,600 plus profit, as you can see in today's high. Now let me take you to the order book and I'll show you which all trades have been taken. So if I take you to the order book, first trade which I took was मैंने 20,500 का पुट सेल किया था 1046. मतलब वहां पे मेरा व्यू था बुलिश. ऑफ कोर्स मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ. तो यहाँ पे जो मेरा लिमिट ऑर्डर है 56 का, दैट गोट एग्जीक्यूटेड, तो आप वहां पे देख सकते हो कि मेरे को सिर्फ 8 पॉइंट का रिस्क था. तो दैट्स व्हाई आई टुक द ट्रेड. फिर ये जो 40-40 के दो लिए, दैट वाज बाय मिस्टेक. ओके, आई डिड नॉट वांट टू टेक दैट क्योंकि मेरी यूजुअल क्वांटिटी 560 है. सो दैट वाज अ मिस्टेक, सो प्लीज यू कैन इग्नोर दैट. ऑफ कोर्स उसमें मेरे को 300-400 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, बट दैट इज समथिंग यू कैन इग्नोर. देन आई रियलाइज दैट ओके, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग इन जस्ट 7 मिनट्स टाइम. मतलब मेरा ध्यान भी नहीं था, आई वाज समवेयर आउट, और ये दो ऑर्डर गलती से लग गए थे, तो आई स्क्वायर इट अप. देन 11/7 को, सॉरी 11/10 को मैंने वापस से वही 20,500 का पुट सेल किया था at 54, and that stop loss again got hit at 70, and third trade I took at 137. तब मैंने कॉल सेल किया था 20,450 का एक बुलिश व्यू लेके at 36, and again that stop loss got hit at 53. तो आज मेरे तीन stop loss hit हुए. Again, I'm telling you, risk management and mindset are very important part, my dear. You can never ignore the part of risk management and mindset. अब यहाँ पे देखो, दो चीजें रिस्क मैनेजमेंट के लिए बता रहा हूँ. My capital is 15 lakhs. I can show you real as well. I'll show you. This is my watch list, and my capital. If I can show you, let me show you. Yeah, money. I'll show you inside the money. Right. So 15 lakhs is what I put on 19th of July. 19th of July को मैंने 15 lakhs rupees infuse किए थे. Today morning opening balance was 15 lakh 30,000 because of the profit that I made earlier. Today I suffered a loss. So net, as of now, it is showing 15 lakh 8,000. So still I'm in profit. Okay. On 19th of July only I started this account. So it's just been 7 days. I started off this profit. Now understand that. So capital is 15 lakhs. What I'm trying to show is I never breach my limit. Of course, in a way I brought in a way I broke it. मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि 1% के अंदर रखो. आज 1.25% है, बट माई लॉसेज आर नॉट क्रेजी. माई लॉसेज आर नॉट क्रेजी. मैं कितने ट्रेडर से बात करता हूँ, उनका इंट्राडे लॉस एक दिन का 20-20%, कैपिटल का 20%, कैपिटल का 50%. मतलब अगर उस एंगल से मैं देखने जाऊं, उतना क्रेजी ट्रेडिंग में करूं, तो 15 lakhs की मेरी कैपिटल है. माई लॉस कैन बी अराउंड 7,50,000. आई नेवर डू दैट. ओके, 50% लॉस. अच्छा, 20% लॉस गिनो तो इट इज 3 lakh. आई नेवर टेक 3 lakh लॉस इन माई डे. ओके, मेरा वही लिमिट है 1% के आसपास. उससे उस लिमिट को मैं कभी क्रॉस नहीं करता हूँ. एंड आई फॉलो स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट. एंड टू फॉलो दैट रिस्क मैनेजमेंट यू नीड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट. अब आप यहाँ पे देखो, आज मेरे तीनों ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुए एट 138. आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था. आई वाज ट्रेडिंग फिन निफ्टी. शायद आप होते ना,
अगर आपका माइंड से स्ट्रांग नहीं है तो आपको एक बार तो ख्याल आ जाता एट एट अराउंड 245, एट 220, 230 कि चलो ये कैंडल है, अब तो प्रीमियम जाएगा, 25 रुपीज प्रीमियम है, मैं इसको सेल करके मेरा लॉस रिकवर कर लेता हूँ। अभी तो एक्सपायरी है, ये आउट ऑफ मनी ऑप्शन का प्रीमियम 30 रुपीज है, ये तो जीरो होना ही होना है, मैं इसको सेल करके मेरा सारा लॉस रिकवर कर लेता हूँ। आप मुझे ऑनेस्टली बताइएगा, इस क्या आपको ऐसा ख्याल आता और क्या आप ट्रेड कर लेते? राइट, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या लिख के बताओगे। आई वुड हैव ट्रेडेड, कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे लिख के बताइए आई वुड हैव ट्रेडेड। सो ये मेरा कंट्रोल है, ये मेरा माइंडसेट है कि बिकॉज मेरी लॉस लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी थी आज के दिन में, मैं 3 लॉस मेकिंग ट्रेड कर चुका था, मेरी लॉस लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तो मुझे फिर और कोई ट्रेड लेना ठीक नहीं लगा। अब चलिए एक के बाद एक देख लेते हैं। पहला ट्रेड था 1046 को, दूसरा ट्रेड था 1110 को, एंड थर्ड ट्रेड वाज एट 1337। सो लेट अस सी इन टाइम जोन में सबसे पहला ट्रेड 1046 को था। तो मैं फिर निफ्टी के चार्ट में बताता हूँ कि क्या देख के मैंने बुलिश ट्रेड लिया था। ओके, सो देखिए ये आज का मार्केट है, 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे एक 5 मिनट की बहुत बड़ी कैंडल गिरी, फिर यहाँ पे रेंज बनी, फिर और गिरा, फिर यहाँ पे आया। ये देखो, ये 1046 की है कैंडल। यहाँ पे क्या हुआ, मैं क्या देख रहा था मैं आपको सिखाता हूँ, मैंने क्यों लिया। तो ऑलरेडी फिर निफ्टी ना गिरते 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 यहाँ से ऊपर से लेके मतलब 20,608 से लेके 20,500 लेवल तक आ चुका था, मतलब तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट गिर चुका था। अब ये 20,500 वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके आसपास रेंज बन रही थी। यू सी दिस, राइट, रेंज बन रही थी और ये ग्रीन कैंडल है, यू कैन सी दैट, ये 1045 वाली ग्रीन कैंडल है। ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि मुझे ब्रेकआउट तक वेट कर लेना चाहिए था, बट एक 20,500 लेवल के आसपास एक अच्छी रेंज बनी थी, और फिर जब वो कैंडल उसके ऊपर जाते हुए दिखी तब मैंने ट्रेड लिया था। ऑफ कोर्स आई कैन से दैट इट इज माय फॉल्ट, आई शुड हैव वेटेड फॉर द कैंडल टू क्लोज। अगर कैंडल क्लोज होने का वेट करता तो शायद मैं यहाँ पे ट्रेड ना लेता, क्योंकि एक इतनी अच्छी कैंडल नहीं थी, ऊपर से रिजेक्शन था। बट मेरा लॉजिक ये था कि 20,500 के इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास रेंज बनी और फिर वो रेंज के ऊपर जा रहा था, तो आई थॉट कि अब ये बाउंस बैक कर जाएगा। सो दैट वाज माय फर्स्ट ट्रेड। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था विच गॉट हिट बाय दिस कैंडल। देन नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट ट्रेड था 11-3 के आसपास। तो जब मैंने ये कैंडल देखी कि भाई चलो ब्रेक कर रहा है, देखो देयर आर 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स। एक या कैंडल ने ये लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी, वापस ऊपर आ गया, नेक्स्ट कैंडल वापस नीचे जाने की कोशिश करी, मगर उसने एंड ना ग्रीन में दिया। ओके, और यहाँ पे मैं देख रहा था कि ये एक लाइन भी सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 बार टकरा के एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास वापस रिजेक्शन लेके कैंडल ऊपर आ रही थी। तो जब 2-3 मिनट इस ग्रीन कैंडल ने ऑफ कोर्स क्लोज एक बैरिश टाइप पे हुआ, ऊपर क्लोज दिया, तब आई थॉट के मतलब ऊपर जा रहा था, तब आई थॉट कि नाउ 20,500 शुड बी सर्वाइव्ड। तब वापस मैंने वहां पे पुट सेल किया था, विच स्टॉप लॉस इवेंचुअली गॉट हिट ओवर हियर, एंड जस्ट आफ्टर हिटिंग द स्टॉप लॉस यू कैन सी दैट इट गिव द मूव। जो मूव मुझे चाहिए था वो मार्केट ने दिया, 20,500 या तो ये लेवल को रिस्पेक्ट किया, बट ठीक है आफ्टर टचिंग अवर स्टॉप लॉस, तो दैट्स ओके। ओके, नाउ फिर मार्केट गिर रहा था, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं थोड़ा ना काम डाउन होना चाहता था। 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद इमीडिएटली मुझे कोई ट्रेड लेने में इंटरेस्ट नहीं था। देन देयर वाज अ ह्यूज फॉल। हाँ, एक चीज यहाँ पे थी, अगर आप गौर से देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे भी ना एक रेंज बनी थी, ये देखो दिस रेंज 20 मिनट्स का रेंज बना, इसको ब्रेकआउट किया। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करता तो शायद बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था, बट देन व्हाट आई सॉ, ये लेवल को ब्रेक किया। ये जो लेवल था मेरा 20,453 को, उसके आसपास आके फिन निफ्टी ने वापस रेंज भी बनाई। यहाँ पे यू कैन सी दिस रेंज, राइट, और जब इस रेंज के नीचे ब्रेकआउट दिया ये कैंडल ने, और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो के नीचे भी ट्रेड करना, मतलब मैंने मेरे सिस्टम तो फॉलो करी थी कि भाई रेंज का ब्रेकआउट दिया, फिर कंफर्मेशन, मतलब नेक्स्ट कैंडल उसके लो के नीचे भी गई,
तब जाके वापस मैंने कॉल शॉर्ट करने की कोशिश करी, जो मेरा आखिरी ट्रेड था। अब जैसे आपने देखा तो 130 के आसपास था, बट यहाँ के स्टॉप लॉस लेके रेंज का हाई लेके मैंने स्टॉप लॉस रखा था, विच अल्टीमेटली गॉट हिट इन जस्ट फ्यू मिनट्स। उसके बाद फिर फिर निफ्टी ऊपर गया, नीचे गया, मैंने देखना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑफ कोर्स कल प्रॉफिट कमाया था, सो आई कैन अफोर्ड टू लूज। एंड डेली कैपिटल का 1% तो वैसे भी मैं रेडी रहता हूँ। देखो, अगर आपको स्टॉक मार्केट में ना सर्वाइव करना है तो लॉस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट रेडी फॉर द लॉसेस, माय डियर, यू कैन नेवर मेक प्रॉफिट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। If you're not ready for the losses, you can never make profit. Stock market is a game. Losses are part of the game. You have to be ready. ऐसा कोई स्ट्रैटेजी आज तक दुनिया में बना नहीं है जो लॉस ना दे। देर इज नथिंग लाइक लॉस प्रूफ जीरो लॉस स्ट्रैटेजी। अगर ऐसा कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बनाने की बातें हैं, राइट? सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। यहाँ पे आपको कुछ लर्निंग मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस लॉस की वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, मैंने कहाँ कहाँ पे गलती करी, माइंडसेट के बारे में मैंने जो बताया, क्या ये पावरफुल है, क्या ये सीखने को मिल रहा है। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फिर से मिलते हैं रात को 9:30 बजे, जब हम कल के लेवल के लिए लाइव पे आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।